Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will discuss lecture 2 of our course. In the last lecture, we have discussed the decimal number system, Caveman number system, binary number system, and conversion from binary and Caveman to decimal numbers. In today's lecture, we will discuss how we can perform decimal to binary conversion. I hope you have done practice from Caveman and binary number system to the decimal number system. Binary to decimal number system, as we have seen in the previous lecture, there are two methods, sum of weights and sum of non-zero terms. In sum of weights, the expression base number and weights are written, then we sum the terms and get a required number. This is a paper pen pencil method. And the second one was sum of non-zero terms. We just write the weights of non-zero terms and add them to get our required number. Mental arithmetic, and it is quick method. Let's have an example. This is sum of weights method, where we write 1 multiplied by 2 power 4, 0 into 2 power 3, 0 into 2 power 2, 1 into 2 power 1, and 1 into 2 power 0. And then we add 16, 0, 0, 2 and 1, and we get our required number 19. In the other method, adding weight of non-zero terms, we just write the weight of non-zero terms as this has a weight of 1, this one has a weight of 2, and this one has a weight of 16. We add these weights to get our required number. And in term of fractions, for fractions we use 1 by 2 and 1 by 8 as 2 raised to power minus 1, 2 raised to power minus 3. And we add these numbers, we get 5 by 8 or 6.625, and 8 plus 2 plus 1 gives us 9, as it has a weight of 1, 2, 4, and this has a weight of 8. We add these numbers and we get an 11. So 11.625 is the required decimal number of this binary number, sorry, of this one. 11.2625 has a binary of this. Now, in the previous lecture, we have also discussed a sum of weight method used in reverse direction to convert a decimal into a binary number. I have told you at that time that there are also two methods for converting decimal number to binary. One is repeated division by 2, which you have been using earlier, and other is the sum of weight method in reverse, and we have seen the other method, this one. Okay, we have weights here, number, we subtract the number from the weight, we get binary 1. 136 is greater than 128, so we subtract it again, we get 1. 8 is less than 64, so no subtraction, so binary 0. 8 is less than 32, no subtraction, binary 0. 8 is less than 16, 0. 8 minus 8 equal to 0. Again we have done subtraction, so binary 1. And from 0 is always less than the other numbers, so we get all the zeros. Here is the binary B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Means bit 8 is it's 1 1 triple 0 1 triple 0. It's B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and B8. So we have 9 bits of binary for 392.
लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नंबर सिस्टम डिस्कस किए थे। एक डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 थी। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 यूनिक पैटर्न्स हैं 0 to 9। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर नंबर को उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको वेट असाइन किया था और बेस आपके पास 10 थी। फिर हमने केवमैन नंबर सिस्टम देखा था जिसकी बेस 5 थी। ये सिंबॉलिक नंबर सिस्टम था। इसमें हमारे पास 5 सिंबल्स थे। उन 5 सिंबल्स को हमने 0 1 2 3 4 कह दिया था और ये इसकी बेस 5 है। हम कन्वर्जन के लिए ये बेस 5 यूज करते हैं। अगेन ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम था। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम देखे थे। बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसकी बेस 2 है। जो भी आपके पास वेट असाइन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से हो रहा होता है। फिर हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा था। हमने देखा था कि हम कैसे केवमैन से डेसिमल नंबर सिस्टम में आ सकते हैं, हम कैसे बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में आ सकते हैं। ये नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन और कुछ बाइनरी के ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने लास्ट लेक्चर में ही देख ली थी कि दो मेथड्स हैं, सम ऑफ वेट और सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं कि सम ऑफ वेट में आपने देखा है कि हम लोगों ने वेट्स निकाल लिए हैं, वेट्स को मल्टीप्लाई किया है उसकी पोजीशन के हिसाब से, आखिर में सम अप करके हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया है। ठीक है, और दूसरा जो था ऐड वेट्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, तो इसमें हमने जो नॉन जीरो टर्म्स हैं सब उनके वेट लिखे हैं और उनको आपस में ऐड किया है, तो हमारे पास 19 नंबर आ गया। ये मेथड क्विक है। आप इसको अपने दिमाग में भी ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मेंटल अरिथमेटिक इसमें करते हैं। जबकि दूसरा जो सम ऑफ वेट मेथड है, इसके लिए ये पेपर पेंसिल मेथड है। इसके लिए आपको पेपर पेन चाहिए होता है या पेपर पेंसिल के थ्रू ही आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। फिर हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर बात की थी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के भी दो मेथड्स हैं, सम ऑफ वेट यूज्ड इन रिवर्स और रिपीटेड डिवीजन बाय 2। सम ऑफ वेट इन रिवर्स हमने देखा था 392 के एक एग्जांपल देखी थी। यहाँ पे हमने उसके वेट्स लिखे थे, जहां पे आपके पास नंबर इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की और जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो हमने 1 बाइनरी बिट में 1 लिख दिया। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हुई, मींस के नंबर जो है वो उसके वेट से लेस था, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। जब नंबर इक्वल भी हुआ तो भी हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो हमने 1 लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सिमिलरली हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 392 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 196 आ रहा है। ठीक है, 196, और आपके पास फुली डिवाइड होगा 392, तो नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 जो आएगा, रिमाइंडर हमने इधर लिख दिया, 196 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म के लिए दोबारा 196 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, 196 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे आपके पास 98 आ गया, और क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो ये फुली डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर आपके पास इसमें भी 0 आएगा। अब 98 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, अगेन फुली डिवाइड होगा क्योंकि आखिर में इवन नंबर है, तो 49 आ गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। अब 49 चूंकि आपके पास एक ऑड नंबर है, तो इस केस में आपके पास रिमाइंडर में 1 आएगा। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, और नीचे आपके पास 48 आ गया, और रिमाइंडर में आपके पास 1 आ गया। ये जो 1 आएगा इसको हमने इधर बाइनरी बिट में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब 24 को दोबारा 24 इधर आ जाएगा, जो क्वोशंट होगा वो नेक्स्ट टर्म में डिवाइड हो रहा होगा। 2 से करेंगे 2 12, इवन नंबर है, फुली डिवाइड होगा 0। फिर 12 आपके पास नीचे आके अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 आर 12, कंप्लीट डिवीजन है, 0, रिमाइंडर 0।
फिर 6, 2 3 ज़ा 6, कंप्लीट डिवीजन है, रिमाइंडर 0। अब 3 है, 3 ऑड नंबर है, 2 को से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन ये आ गया, इसमें रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा तो ये 1 आएगा, और लास्ट में जो 1 आएगा 1 आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बिट की पोजीशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। जो ये वाला मेथड था, जो पिछला मेथड था, उसमें नीचे से बिट 0 स्टार्ट हो रही थी, ऊपर बिट 8 थी। इस मेथड में ऊपर बिट 0 है, नीचे बिट 8 है। ये बिट 0 और बिट 8 का मतलब ये कि बिट 8 आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, कि सॉरी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो बिट होगी जो नंबर की वैल्यू को ऊपर बहुत जिसके नंबर की वैल्यू से जिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। जिस तरह ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये बिट 0 है और ये बिट आपके पास 8 है। जो बिट 8 है उसको आप 0 करेंगे तो आपके पास नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, और ये जो बिट 0 में है इसको आप 1 से 0 करेंगे तो नंबर में सिर्फ एक वैल्यू का फर्क आएगा, ठीक है। 1 से 2 हो जाएगी, 100 से 101 हो जाएगी, मगर अगर आप लास्ट वाली बिट चेंज करोगे तो वो 100 से उठा के 10 या इस तरह आ जाएगी। तो इसलिए उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज करने से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड था। ये आप लोग यूज भी करते रहे हैं काफी। इस मेथड पे मेरे ख्याल में आपकी काफी एक्सपर्टीज होंगी। अच्छा, बाइनरी डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ वेट मेथड्स है, वेट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। जिस तरह 0.1101, इसमें आप देख लें इस 1/2, 1/4, 1/8 0 है तो 1/16, इनको हम देखेंगे। और सम अप टू 0.8125 बन रहा है, सम ये वाला सम जो है ये 0.825 बन रहा है। मार्कर ले लूं, इनको मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास 0.825 आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था 0.5 होता है, 1/4 0.025 आ रहा है, और 1/16 आपके पास आएगा दोबारा मिट गया, 0.5 0.025 आ रहा है, 125 0.025 आएगा, और 0.625 आएगा, ठीक है। इनको आप ऐड करें तो आपके पास 5 + 5 0.125 है आई थिंक, तो आपके पास 0.825 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हमने जो उसके फैक्टर्स थे 1/2 उनको आपस में ऐड अप किया तो आपके पास नंबर आ रहा है। दूसरा मेथड है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं अनलेस के अंटिल आपके पास 1 ना आ जाए। इन दोनों मेथड्स की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड तो हमने देख लिया, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 है। इसको देखते हैं कि 0.8125 की बाइनरी अगर मैं इस मेथड से निकालूं तो क्या यही आती है, ठीक है। ओके, 0.1825 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 किया 1.625 आ गया। अब यहाँ पे ये 1.625 है, इसको 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 625 है इसको अगेन इधर ले आए हैं और इसको फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास 1.25 आ रहा है, अगेन ये वाला 1 इधर आ जाएगा और 0.250 वो नीचे आ जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 0.5 आ रहा है, ये वाला 0 इधर आ गया और ये 0.5 इधर आ गया। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.00 आ रहा है, ये 1 इधर आ जाएगा और ऑलरेडी आपके पास 0 रह गया तो इससे आगे नहीं होगा। तो इसका मतलब है .1101 जो है वो 0.8125 का कन्वर्जन है। तो हम लोगों ने इस तरह से फ्रैक्शन पार्ट जो डेसिमल का फ्रैक्शन पार्ट है उसको हमने बाइनरी निकाल दिया, ठीक है।
तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 एक मेथड है जिससे हम बाइनरी की जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो डिवाइड बाय जीरो या रिवर्स वेट मेथड था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोगों ने जो विदाउट डेसिमल है, जो इंटीजर नंबर है, उनकी कन्वर्जन कैसे करते हैं, और फिर फ्रैक्शन पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आते हैं बाइनरी अरिथमेटिक पे। बाइनरी अरिथमेटिक में वो ऑपरेशन है जो हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। ये मेथड्स बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये अरिथमेटिक बाइनरी की, और ये अरिथमेटिक आपकी आगे बार बार यूज भी होती है। अच्छा, हम लोग बाइनरी एडिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी एडिशन देखते हैं। ये चीज हम लोग एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन है फॉर बाइनरी वो ये हैं कि जब दोनों टर्म्स 1 होंगी, ठीक है, तो आपके पास थोड़ी सी चेंज हो रही होती है पोजीशन, वरना बाकी सेम ही है। 0 प्लस 0 आपको 0 ही देगा। ठीक है, 0 प्लस 1 आपको 1 देगा। ठीक है, 1 प्लस 0 आपको 1 देगा। यहां तक तो वही जो हम डेसिमल में जिस तरह करते हैं वो सब चीजें हैं। अब थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं जब आपके पास 1 प्लस 1 आता है। अब ये 1 प्लस 1 आपको देता है 2। अगर हम सिंपल 1 प्लस 1 डेसिमल में करें तो आपके पास 2 आता है। अब 2 की बाइनरी है 1 0, तो जो सम टर्म होगी बाइनरी के केस में वो 0 होगी, और ये जो 1 होगा ये चला जाएगा कैरी के अंदर। तो मैं अपनी वैसे जो मैं अक्सर स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि जो कैरी वाला खाना आप इसको पहले बना लें और सम वाला खाना बाद में बना लें, तो आपके पास बहुत इजी हो जाता है। यानी अगर मेरे पास सम और कैरी ऐसे बन रहा हो, ठीक है, एक मिनट में मेरे पास सम और कैरी ऐसे बन रहा हो, तो मेरे ये तो गलत हो गया। फिर कैरी और सम इस तरह से आ रहा हो, तो अब मैं अगर देखूं 0 प्लस 0, दोनों में 0 0 आएगा। ठीक है, 0 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 0 अगेन 0 1, 1 प्लस 1 1 0। तो कैरी में 1 है, सम में 0 है। इस तरह से अगर टेबल हम देखें तो हमें काफी इजी पता चल जाता है। इसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पे 1 0 की जगह आपको 0 1 लिखना पड़ रहा है। सम टर्म आपके पास 0 होगी और एक कैरी जनरेट होगा। इसकी वजह ये है कि हम सिंगल बिट एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि जो रिजल्ट आ रहा है जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास मोर देन 1 बिट में आ रहा है। तो एक ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ रही है। ओवरफ्लो की कंडीशन जब भी करूंगी तो कैरी आपके पास 1 होगा और सम टर्म आपके पास 0 होगी। अच्छा, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सिंगल बिट देखा था, हम मोर देन 1 बिट की एडिशन देखते हैं और मोर देन 1 नंबर्स देखते हैं। तो मेरे पास ये नंबर है 1011, सेकंड नंबर है 1100 और थर्ड नंबर है 100, फोर्थ नंबर है 11। अच्छा, अब इन नंबर का अगर हम जल्दी जल्दी से वेट के हिसाब से कन्वर्जन कर लें, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये 1 2 4 और 8 है। तो 8 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, तो ये नंबर 13 है। यहाँ पे 4 प्लस 2 6 है। ये मेरे पास नंबर 8 है और ये मेरे पास नंबर 3 है। तो मैं इन 13 6 8 और 3 को ऐड कर रहा हूँ। 13 प्लस 3 6 और 8 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ गया, अगेन 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ गया। ठीक है, 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ गया। अब 1 प्लस 1 आपके पास 0 1 देगा, मीन्स सम टर्म आपके पास 0 होगी, सम टर्म आपके पास 0 आ रही है यहाँ पे, और ये कैरी आपके पास 1 जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 1
अब ये सॉरी 0 और ये 1 है, 1 + 1 आपके पास 1 1 आ रहा है, ठीक है, 1 1 1 + 1 आपके पास 0 1 आ रहा है, ठीक है, 0 1 आ रहा है। तो ये वही 2 वाली कंडीशन है, यानी आपके पास एक कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। 1 + 1 आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 1 आ गया। अब 1 + 1 आपके पास 1 1 आ रहा है, ठीक है, यानी आपके पास अब ये 3 की वाली 3 1 है ना, तो आपके पास 3 आएगी और 3 की बाइनरी आपके पास 0 1 1 होती है, ठीक है। अब 1 1 + 0 अगेन 1 1 आ रहा है, 1 1 + 0 आपके पास 1 000 आएगा, 4 की बाइनरी आती है, 4 की। तो ये इसमें से क्योंकि हम सिंगल बिट में कर रहे हैं, ये 0 इधर आ गया और यहाँ पे 1 0 जो है वो आपके पास कैरी के अंदर चला गया। अब 1 0 + 0 आपके पास अगेन 1 0 देगा, 1 0 + 1 आपके पास 1 1 आएगा, 1 1 + 0 आपके पास अगेन 1 1 आएगा। तो ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 आपके पास कैरी जनरेट हो गया। 1 + 1 1 0, ठीक है, 1 + 1 0 + 1 1 1 आ गया, ये वाला 1 ये आ गया और ये कैरी वाला 1 सीधा आपके पास इधर आ गया। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है 1 1 1 0 0, ठीक है। अब मैं वेट्स के हिसाब से अगर इसको देखूं तो मैंने आपको बताया था ये 1 2 4 8 और 16, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा 16 + 8 + 4, ठीक है, 16 + 4 20, 20 + 8 तो 28, यानी कि मेरे पास ये 28 की बाइनरी है। और अब हम इनको ऐड करके देखें तो ये 1 2 4 8, इनको ऐड करके देखें तो 8 + 2 हमने 10 और 11 11 + 6, ठीक है, और 6 11 + 6 + 8 और +3, तो इसको अगर हम ऐड करें तो मेरे पास आता है 11 + 6 + 8 + 3 28, ठीक है। तो जो बाइनरी एडिशन का जो रिजल्ट आएगा और अगर आप उसका इक्वल एंड डेसिमल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो दोनों सेम ही होंगे। थोड़ा सा बस इसमें ख्याल करना होता है कैरी का, कि क्या हमारे पास कैरी हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास 3 1 है, 3 वंस को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 1 आएगा, 2 वंस को आप ऐड करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर 1 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 4 वंस को आप ऐड करोगे, 4 वंस को आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर 1 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक रूल्स हैं, अगर ये आपको आते हो तो बाइनरी एडिशन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इसके भी अगर हम सिंगल बिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखें तो 0 - 0 आपको हमेशा 0 ही देगा, ठीक है, 0 - 0 आपके पास डिफरेंस इसका 0 ही निकलेगा। 0 - 1 हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए 0 - 0 में से हम 1 नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, एक 1 बोरो करेंगे। बोरो जब एक 1 यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे पास 1 0 बन जाएगा, मींस 2 बन जाएगा। तो 2 - 1 आपके पास क्या होगा, 2 - 1 आपके पास 1 होगा, ठीक है, 1 0 - 1 आपके पास 1 आएगा क्योंकि आपने एक बोरो लिया तो बोरो की बिट में हमने एक 1 कर दिया है। अब अगेन 1 - 0, 1 - 0 आपके पास 1 होता है, 1 - 1 आपके पास 0 होगा। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह दो मल्टीपल बिट्स नंबर हैं, इनको हम माइनस करते हैं तो 1 - 0 मेरे पास रिजल्ट 1 आ गया, 1 - 1 मेरे पास रिजल्ट 0 आ गया। अब 0 - 1 नहीं हो सकता तो मैंने एक 1 यहां से बोरो किया है। अब 1 0 मेरे पास मैंने आपको बताया 1 0 2 है, तो 2 - 1 या 1 0 - 1 आपके पास 1 आ रहा है। और अब फर्स्ट नंबर ये जो 1 है बोरो वाला, ये मेरे पास इस तरह आ गया।
बल्कि नहीं, ये बोरो वाला तो इधर ही रहेगा, ये फर्स्ट नंबर इसी तरह फर्स्ट 100 है, नीचे मेरे पास नंबर कोई भी नहीं है तो 10 आपके पास नहीं है, तो ये वाला नंबर आपके पास बोरो हो रहा है। बोरो आप नेक्स्ट बिट से करते हो, ठीक है। बिट 3 है तो आप बिट 4 से बोरो करोगे, बिट 2 है तो आप बिट 3 से बोरो करोगे। ये वाला 1 इधर बोरो हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देख करके देखूं तो मेरे पास ये आएगा 1248, ये तो नंबर क्या है 8 + 2 10 + 1 11, 11 - 6 हो रहा है। ये 1 2 4 है ना, तो 4 + 2 6 है, और 11 - 6 मेरे पास क्या आ रहा है 4 + 1 5, तो 11 - 6 आपके पास 5 ही होता है, ठीक है। बस बोरो का ये, इसमें सिर्फ एक केस में आपको याद करनी होती है कि 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो हम जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हम उससे एक 1 बोरो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, ठीक है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को अक्सर रेफरेंस करते हैं जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसके साथ। ये आगे हम लॉजिकल एंड जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका ट्रुथ टेबल, उसका ट्रुथ टेबल आपके पास सेम ही आता है। तो इसमें 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। सिर्फ जब दोनों बिट्स 1 होंगे तो आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके। मेरे पास दो नंबर हैं, एक 13 और 5, ठीक है। 13 और 5 को मल्टीप्लाई करें डेसिमल में तो आपके पास रिजल्ट 65 आता है। 13 की बाइनरी ये है, 5 की बाइनरी ये है, ठीक है। अब ये बहुत इजी है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। जब आपके पास 1 है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज यहां आ जाता है, एक क्रॉस लगाया, ठीक है। 0 है तो ऊपर जितने डिजिट्स हैं उतने मैंने जीरोस इंसर्ट कर दिए, ठीक है। फिर अगेन 1 है तो मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस लगाए हैं और मेरे पास 1 1 0 1 2 क्रॉस आ गए हैं। अब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। ये वाले 2 जीरोस आ रहे हैं, फिर 1 0 1 1 0 1 आ रहा है तो 0 और 1 इधर आ रहा है, 1 1 0 1 आ रहा है, इधर आ रहा है 1 1, फिर 0 1 आ रहा है, फिर 1 1 0 और फिर 1 आ रहा है, ठीक है। जो लास्ट वाला 1 बचा है वो इधर आ रहा है, तो 1 0 0 1 आपके पास जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है। और इसकी बाइनरी को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो अगेन 65 आएगा। ये 64 का वेट है, ये 1 का वेट है, 64 + 1 64 + 1 आपके पास 65 आता है, ठीक है। 2⁸ आ रहा होगा, 2⁷ आ रहा होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2⁶ है, 2⁷ 1 to 8 होता है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से करनी होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट। अच्छा, ये एक बड़े मजे की चीज है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट। हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 29 मेरे पास नंबर है, ठीक है। इसको मैं इस साइड पे एक शिफ्ट करता हूं और जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी वो मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 to 9 में मेरे पास 0 हो जाएगी, तो मेरे पास इसका मतलब है कि 290 का आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक बिट शिफ्ट करता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो उसका मतलब है कि मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 के साथ। सेम रूल अप्लाई होता है बाइनरी के अंदर। बाइनरी में अगर मैं एक शिफ्ट लेफ्ट करूंगा तो मैं इसका मतलब होगा कि मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 के साथ, ठीक है। और अगर मैं 2 डिजिट मूव करूंगा तो मेरा इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 1101, इसको 29 है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट पे तो मेरे पास ये आ जाएगा 111010, ठीक है। यहाँ पे मैंने आखिर में एक 0 ऐड कर दिया तो मेरे पास शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। अब 111010 की जो बाइनरी है वो 58 की बाइनरी है। इसका मतलब ये हो गया
कि 29 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है। 9 2 जार 18, एक उधर चले जाएगा, 2 2 जार 4 1 5 आ जाएगा, तो 58 आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट 1 बिट इज बाय मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर मैं 2 शिफ्ट लेफ्ट करूंगा 1 1 1 0 1 0 0, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं 29 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो आंसर आएगा उसकी बाइनरी सेम यही होगी। तो शिफ्टिंग लेफ्ट का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मुझे इसी तरह 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 3 जो है शिफ्ट देने हैं लेफ्ट की तरफ नंबर पे। तो ये एक बहुत इजी प्रोसीजर है कि अगर मुझे कोई क्या है कि जी ये बाइनरी नंबर है और इसको अपने मल्टीप्लाई, इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मुझे जस्ट एक शिफ्ट करना है। मुझे ये नहीं है कि मैं नीचे 0 1 से 1 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं आंसर निकालूंगा, या 1 0 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं 1 0 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मुझे डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग लेफ्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन बाइनरी, और डेसिमल में लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 10 होता है क्योंकि वो बेस 10 है। इसी तरह बाइनरी डिवीजन पे हम बात आ जाते हैं, ठीक है। बाइनरी डिवीजन जिस तरह हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसमें क्वोशंट होता है, ठीक है। क्वोशंट के बाद इसमें आपका आ जाता है रिमाइंडर आता है, ठीक। मेरे पास एक नंबर है 1101, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 101 से, ठीक है। 101 और 1101, अगर मैं इसकी बाइनरी कन्वर्जन कर लूं तो ये आ रहा है 1248, यानी 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, ये 13 के इक्वल आ रहा है, और ये आ रहा है 124, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 को अगर मैं डेसिमल में 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 से, तो 5 2 जार 10 होगा, ठीक है। मेरे पास नीचे 3 आ जाएगा, यानी क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर 3 है डेसिमल के अंदर। अब हम बाइनरी इसी तरह से हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं बाइनरी की, 1101 और 101। अब 1101 और यहाँ पे 101, ठीक है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये 101 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये 10 आ रहा है, ठीक है। जाहिर बात है इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास ये 10 आएगा, 101, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1101 को मैं 101 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 101 आ रहा है। इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 011 आ जाएगा। अब 011 101 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 000 आएगा, और यहाँ पे फिर 3 में से 0 निकालें तो मेरे पास अगेन वही 11 आ जाएगा। तो बाइनरी डिवीजन भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें वैल्यूज आगे पीछे हुई हैं, इनको मैं सेट करके भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से सेट होंगी। अच्छा, ये मैंने वो ठीक कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि ये 110 और 101, 110 जो नंबर है वो 101 से बड़ा है, तो हमने 1 के साथ किया, 101 आ गया, फिर इसमें से माइनस किया, इसको 0 में से 1 नहीं जा सकता था, हमने यहाँ से बोरो किया, 1 में से 1 गया, तो मेरे पास अगेन यहाँ 10 आ गया, तो 10 में से 1 गया, मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 आ गया, ठीक है। 1 में से 1 गया, मेरे पास 0 आ गया, तो 0 1 एक ये आ गया, और ये वाला 1 फिर नीचे आएगा, तो मेरे पास 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें पॉइंटर्स बहुत जल्दी गायब हो जाता है, मैं इसको थोड़ा पेंट में आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये मैंने ये पेंट ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे हम करते हैं डिवीजन 1101 और 101,
यही 1101 और 101 यही आ रहा है, ठीक है। अब 110 और 101, ये 101 110 अगेन बड़ा नंबर है क्योंकि इसकी जो सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो उसमें आप देख रहे हैं इसकी 10 है, इसकी 11 है। मींस के अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करूं, 3 बिट है तो इसलिए हमने 3 बिट देखे हैं। अगर मैं इसको देखूं 1 2 4 तो ये 4 प्लस 2 6 है और ये मेरे पास 5 है, ठीक है। तो 5 और 6 को अगर मुझे करना पड़े तो मैं अगेन यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 101 आ रहा है, ठीक है। अब 101 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर आएगा, 1 में से 0 नहीं जा सकता तो यहाँ से हमने एक 1 बोरो किया, 10 में से 1 गया 1 आ गया, ठीक है। 102 होता है, 2 में से 1 जाए तो 1 है, 0 में से 0 गया 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया। ये वाला 1 अब एज इट इज नीचे आ जाएगा 1। अब 3 और 5, ये नंबर और ये नंबर, आप ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारे तीनों डिजिट 0 0 0 हो जाएंगे और मेरे पास 0 में से 1 1 में से 0 गया, ठीक है। 1 में से 0 गया 1 आ गया, 1 में से 0 गया 1 आ गया, तो ये 0 1 1। तो ये मेरे पास 3 की आ गई बाइनरी, ये मेरे पास 2 की बाइनरी आ गई है और ये मेरे पास 5 आ रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास आ रहा था 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो 5 2 10, 13 माइनस 10 आपके पास 3 आता है। तो ये बिल्कुल ठीक वही जैसे हम डेसिमल में कर रहे होते हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर ये मेरे पास 3 आ गया था रिमाइंडर तो मैंने दोबारा इसको 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जब तक यहाँ पे आपके पास बिट्स रहेंगी, ठीक है, जब तक यहाँ पे आपके पास बिट्स रहेंगी आपको मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक ये बिट्स खत्म नहीं हो जाती। अब इससे नेक्स्ट में कोई, यहाँ पे मैंने ये 1 0 0 किया, मेरे पास 1 1 आ गया, अब यहाँ पे कोई बिट बची नहीं है जो नीचे आए, इसलिए मैंने इससे मजीद आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी देखिएगा। बाइनरी डिवीजन की मजीद एग्जांपल्स हम क्लास में भी कर लेंगे अगर कंफ्यूजन हुई तो। डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट, अब मल्टीप्लीकेशन बाय 2 या मल्टीप्लीकेशन बाय 10 हो रही थी जब हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे। इसी तरह जब हम शिफ्ट राइट करेंगे तो डेसिमल में उसका मतलब होगा डिवीजन बाय 10 और बाइनरी में मल्टीप्लाई शिफ्ट बाय राइट का मतलब होगा डिवीजन बाय 2, ठीक है। तो 29 को अगर मैं शिफ्ट लेफ्ट करूंगा, ठीक है, शिफ्ट राइट करूंगा, सॉरी लेफ्ट नहीं, मैंने पहले लेफ्ट इस तरफ किया था, अब इसको इधर शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ पे 1 नहीं है तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ पे शुरू में 0 आ जाएगा तो 1110.1 आ जाएगा। 110.1 14.5 है, तो 29 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो आपके पास 14.5 ही आता है। इसी तरह 29 को अगर मैं डेसिमल में शिफ्ट करूंगा, इस साइड पे शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास 2.9 आ रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइड बाय 10 हो रहा है। अगर मैं इसको 2 दफा शिफ्ट करूंगा 0.29 आ जाएगा, इसका मतलब है डिवाइड बाय 100 है। अगर और शिफ्ट करूंगा 0.029 आएगा तो डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। इसी तरह बाइनरी में भी जब आप इसको राइट पे शिफ्ट करोगे 1 बिट तो डिवाइड बाय 2 है, 2 बिट करोगे तो डिवाइड बाय 4 होगा, 3 बिट अगर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड बाय 6 होगा। तो ये वो शॉर्टकट्स है जिनसे हम डायरेक्ट डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग ऑपरेशन। अच्छा, साइंड एंड अनसाइंड नंबर। साइन नंबर वो नंबर जिनके साथ जो आपके पास माइनस नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं, इनको हम साइन नंबर्स कहते हैं। इसी तरह अनसाइंड नंबर हैं, अनसाइंड नंबर जो 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो डेसिमल में तो हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब बाइनरी में उसकी मतलब ये होता है कि अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन नंबर्स हैं, साइन नंबर के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो वो एक नेगेटिव नंबर है।
अच्छा, इसमें अनसाइंड बाइनरी नंबर्स जो अब तक हम देख रहे थे कि 0 से अप टू आप 3 ले रहे हो तो ये आ रहा है, 4 ले रहे हो तो ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें हम लोगों ने साइन पे कहीं बात नहीं की थी। जब आप डेसिमल में बात करो तो आप 0 से 10 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये अनसाइंड नंबर्स हैं। मगर अगर 0 प्लस 10 माइनस 10, इसमें ये जो माइनस और प्लस जो साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि ये साइन नंबर्स हैं, यानी कि नेगेटिव भी हैं, ये पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। मोस्ट साइंड बाइनरी नंबर्स में जब हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो उससे पता चलता है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 0 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो आपका वो नंबर पॉजिटिव होगा, अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो आपका वो नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब बाइनरी 13 आप देख रहे हैं 01101 आ रहा है। अगर मैं इसको साइंड में ये अनसाइंड बाइनरी नंबर 13 है, ठीक है। अगर मैं इसको साइंड में कंसिडर करूंगा तो मेरे पास इसका मतलब है कि ये -5 नंबर की बाइनरी है, ठीक है। तो ये इतना चेंज हो जाता है साइंड और अनसाइंड की बाइनरीज। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, हम जिस तरह 13 का अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैंने 0110113 की बाइनरी लिखी है, मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में मैं ये नंबर इन्वर्ट कर दूंगा, 1 है तो 0 लिख दूंगा, 0 है तो 1 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इन्वर्ट कर दी है सारी बिट्स, और अब इन्वर्ट करने के बाद मैं इसमें +1 ऐड करूंगा तो मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। 0 + 1 1 1 0 0 1। अब ये 1 जो है वो मेरे पास क्या दे रहा है कि मैं ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये 1 मेरे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव नंबर है, और ये बाइनरी जो है आपके पास वो -13 की है, ठीक है, -13 की आ रही है। अब इसको और इसको आपस में देखें तो आपको काफी चेंज आ रहा होगा, ठीक है। ये अनसाइंड था, अब ये साइंड नंबर है, ये साइंड नंबर आ रहा है, ये अनसाइंड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 13 का टूज कॉम्प्लीमेंट -13 लिया है, इससे हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस बाइनरी के नेगेटिव नंबर्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। +5 +2 आपके पास +7 दे देता है। बाइनरी में देखें 1 + 0 1 0 + 1 1 1, तो 0 1 1 आपके पास +7 आता है। अब -2 देखते हैं, -2 ये टू का टूज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे आ गया, 0 0 1 0 को मैंने इन्वर्ट किया तो मेरे पास 1 1 1 1 0 1 आ गया। अब इसमें मैंने +1 ऐड किया तो 1 + 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, ये -2 आ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट लेके, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में ये है कि +5 -2, मुझे 5 की बाइनरी में से 2 को माइनस नहीं करना, बल्कि +5 में मुझे +-2 करना है। मुझे इसमें ये बाइनरी ऐड करनी है, मुझे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेता हूं और उसी को मैं बाइनरी में ऐड कर रहा होता हूं तो इसका मतलब है कि मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मगर असल में मैं बाइनरी में मैं एडिशन कर रहा होता हूं, ठीक है। अब मैं +5 और -2 को इसको मैं आपस में ऐड करूंगा तो 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1, और ये 1 एक कैरी जा रहा है, ये कैरी को हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इन टर्म्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 0 1 1 आ रहा है, ठीक है। 0 0 1 1 का मतलब आ रहा है +3। अच्छा, अब ये जो 1 टर्म आ रही होती है, कैरी आ रही होती है, इसको हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हम 4 बिट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 बिट्स को देखेंगे, हम 5th बिट को नहीं देखेंगे। और हम साइन नंबर्स में क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो मेरे रिप्रेजेंट कर रही होगी नंबर को, ठीक है। अब ये -5 -2 है, ठीक है। -5 अगेन 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, -2 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास -7 की बाइनरी आ रही है। अगर ये -7 जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है
+7 का, ठीक है, ये +7 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये साइन नंबर इस तरह डायरेक्ट नहीं देख रहे, अगर मैं उस तरह देखूं तो ये मेरे पास 1 नेगेटिव नंबर आएगा, 001 -1, तो ये -1 है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर -7 का में जो मेरे पास नंबर आ रहा है, मुझे इसको देखना है कि ये किसका डेसिमल बन रहा होगा, तो मैं इसका अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं इसका करूं तो 0110 और इसमें +1 ऐड करूं तो मेरे पास ये 7 आ रहा है, 111011, ठीक है। तो ये +7, ये +7 का टूज कॉम्प्लीमेंट -7 है, 111001। तो टूज कॉम्प्लीमेंट और अनसाइंड नंबर, साइन नंबर्स, इनमें डिफरेंस है। इसी तरह फिर -5 + 2 किया तो हमारे पास -3 रिजल्ट आता है। -3 का टूज कॉम्प्लीमेंट 1101 आ रहा है, ठीक है। -3 जो इन फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास +3 आएगा। रेंज ऑफ नंबर्स, मैक्सिमम रेंज हमें बताती है कि एक बिट के अंदर रहते हुए हम मैक्सिमम कौन से नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ बिट्स ये डिटरमाइन करती है कि आप किस तक जा रहे हो। डेसिमल नंबर की एग्जांपल देखते हैं, बाइनरी नंबर की एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं ओवरफ्लो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम रेंज ऑफ नंबर्स को डिफाइन करेंगे। अब अगर हम अनसाइंड की बात करें तो अनसाइंड के लिए फॉर्मूला होता है 2n-1। ये n नंबर ऑफ बिट्स हैं। इन केस ऑफ 3 बिट्स आप देख रहे हो 2^3 -1 = 8 -1 7। तो 3 बिट्स के अंदर अगर आप अनसाइंड नंबर ले रहे हो तो आप मैक्सिमम नंबर जो है वो आप 7 तक जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि 3 बिट्स के अंदर हम मैक्सिमम 7 तक गए हुए हैं, मैक्सिमम 7 तक जा रहे हैं। इसी तरह अब साइंड और टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इनकी जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेंज निकालने का वो सेम है, 2n-1 और फिर -1। अब इस केस में हम 4 बिट्स देख रहे हैं तो 2^4 -1, 2^4 -1 is gives us 2^4 -1, 2^3 8 8 -1 7, ठीक है। तो +7 तक आप जा सकते हो मैक्सिमम। ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए 2^n-1 यानी -8 तक जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 2^n-1 -8 अप टू +7। अब यहाँ पे रेंज ऑफ नंबर आप देखें, डेसिमल में मेरे पास ये आ रहा है। बाइनरी के लिए रेंज ऑफ नंबर अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैं -8 से +7 तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहाँ पे 4 बिट के साथ में -8 से +7 तक जा सकता हूं। और अनसाइंड में अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं तो मैं 16 तक जाऊंगा, क्योंकि 2^4 -1 आ जाएगा, 2^15 तक, सॉरी, 2^4 8 16 -1 तो 15 तक जा सकता हूं। तो ये फर्क पड़ता है नंबर ऑफ बिट्स से, ठीक है। जीरोस का पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में उसके टूज कॉम्प्लीमेंट वही आ रहा है, नेगेटिव के अंदर चेंज होता है। अगर ये 0 to 7 है, ये मेरे पास साइंड में लिखी हुई है उसकी रिप्रेजेंटेशन, ये मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में है, और ये मेरे पास अनसाइंड में आप देख रहे हो कि मुझे सिर्फ 3 बिट्स चाहिए और साइंड और टूज कॉम्प्लीमेंट में वही नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 बिट्स रिक्वायर्ड है। नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में आप जो साइन मैग्नीट्यूड है, सॉरी, इसका जो 2^n-1 2^n⁻1 ये आती है। साइन मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम है, यहाँ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, यहाँ -1 आएगा, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट में मैं -8 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जबकि साइन मैग्नीट्यूड में मैं -7 तक ही जा सकता हूं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट से मुझे थोड़ी सी रेंज ज्यादा मिलती है बनिस्बत साइन मैग्नीट्यूड के। इसमें 1 साइन मैग्नीट्यूड में 1 नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1111 मेरे पास वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ये नेगेटिव नंबर है, यानी 7, और ये 1 -7, 6 -6, 5 ये -5। जबकि टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने 8 का
2's कॉम्प्लीमेंट लिया और उसमें +1 ऐड किया तो मेरे पास 100 आ रहा है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट है। 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज ये 2n-1 और नेगेटिव के लिए -2n-1, जबकि साइन मैग्नीट्यूड के लिए 2n-1 नेगेटिव और 2n-1 -1 पॉजिटिव के लिए आ रही है, नेगेटिव के लिए आ रही है, ये पॉजिटिव के लिए आ रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए है। अनसाइंड में तो आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का फायदा ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ रेंज बढ़ जाती है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर की अगर समरी देखें तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने देखा, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 को देखा है। उससे पहले जो चीजें थी वो हम पिछले लेक्चर्स में भी पिछले लेक्चर 1 में भी देख चुके हैं। फिर हमने फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा, ठीक है, कि अगर हम लोगों को बाइनरी टू डेसिमल होता है तो सम ऑफ वेट्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। और जब हमें डेसिमल से बाइनरी में जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 देखते हैं और उसमें हम वेट्स देख लेते हैं 1/2 और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके। हमने बाइनरी एडिशन देखी, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, फिर शिफ्ट ऑपरेशन देखे, शिफ्ट ऑपरेशन से मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट ऑपरेशन डिवीजन के अंदर शिफ्ट राइट करने से आपके पास डिवीजन के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। लास्ट में हम लोगों ने साइंड, अनसाइंड और 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट और रेंज ऑफ नंबर्स को देखा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे अगर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।